Hello everyone, I am Sarthak and I welcome you to Civils with Akash Chanakya IAS Academy. Today's session is very important for all those candidates who have cleared Punjab PCS prelims and are appearing for Punjab PCS mains. Right? Today's session is about ethics. Basically, if you see the Punjab PCS mains exam, the syllabus you will see, I will cover that also in today's lecture. आज के lecture में उसको cover भी करेंगे. तो वहां पर आप देखोगे कि as such ethics अलग से कोई subject नहीं है. जीएस 4 के अंदर एक सेक्शन आएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग दैट यू कैन रिलेट विद एथिक्स. बेसिकली वो केस स्टडीज की फॉर्म में ज्यादा आता है. ठीक है, उसी को डिवॉल्व करेंगे आज. थोड़े क्वेश्चंस भी देखेंगे क्या पैटर्न रहा है, क्या अब तक कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ऑल दोज थिंग्स. टुडेज क्लास विल बी इंट्रोडक्टरी क्लास. ਅੱਜ ਦੀ क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी ਉਹਨਾਂ स्टूडेंट्स ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨਸ ਦੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਰਾਈਟ, ਸੋ ਵਿਦ ਆਲ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਆਵਰ ਵੀਡੀਓ. So before starting, I have a very important announcement. Rather, I would say I have a gift for Punjab PC students जो मेंस के लिए पेयर कर रहे हैं. उनके लिए चाणक्य आईएएस एकेडमी आपके लिए एक गिफ्ट दे रही है, जहां पर क्या है, we have launched mains brain box under which there are two things. We are providing two things. We are providing you full mains test series as well as printed notes. और ये जो आपके लिए प्रिपेयर किया है हमने, ये बहुत ही ज्यादा डीप रिसर्च के बाद प्रिपेयर किया गया. राइट, इसके अंदर एज यू कैन सी दिस हैव बीन प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ आदित्य शर्मा हु इज एन आईएएस ऑफिसर, ईशान सिंगला द डीएसपी इन पंजाब, राइट, मोहित सिंगला, देन आवर ओन मेंटर द फाउंडर ऑफ सिविल्स विद आकाश चाणक्य आईएएस एकेडमी मिस्टर आकाश सर. राइट, he have mentored more than 10,000 students, and Abhinandan Gupta, right? So you can see it has been prepared with very thorough research. आफ्टर वेरी थॉरोली रिसर्च करने के बाद इस चीज को प्रिपेयर किया गया है, जिसके अंदर हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. बाय द वे आपको यू विल बी गिवन 25 टेस्ट. मेंस टेस्ट सीरीज के अंदर 25 टेस्ट और जो आपकी मेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, आपकी आंसर राइटिंग को, आपका जो फियर है उसको निकालने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे. You should definitely go for it. And then the printed booklets, 17 booklets will be provided for you for the mains exam. कहीं कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. This will be enough for you, right? And price क्या रहेगा इसका? Only and only rupees. If you buy the complete package, printed notes plus mains test series, that cost about 8,000 rupees only. That's why I said it's a gift for you, right? It's such economical price. And if you want to buy only mains test series, that is also an option available for you. You will be getting it for only rupees 5,000. 5K के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा. बहुत ही क्रिस्प वे में आपको नोट्स मिलेंगे. यहाँ पर कोई ज्यादा लेंदी नहीं किया गया. एज वी नो दैट टाइम इज द की नाउ. सानू पता है कि टाइम बड़ा क्रूशियल है इस टाइम, वो वेस्ट नहीं किया जा सकता किसी भी हाल च. That's the reason we have kept it in a very precise and crisp manner for you. Previous year questions, everything, each and everything is covered under these notes. Authentic way में. You don't need to go anywhere, right? So it's at the end of the day, it's your choice only. If you still like it, you can go for it. Other, it's your wish, right? But if you ask me, if you take my suggestion, I will say you definitely go for this, right? It will be worthwhile for you when you give the exam. जब prepare करोगे, उसके बाद जब exam में appear होगे, you yourself will see it was very worth. ठीक है, so let's start. आज का हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. See, this is GS पेपर 4. ओके, पेपर को देखने से पहले, ठीक है, पेपर से पहले आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू समथिंग. ठीक है, थोड़ा एथिक्स की बात कर लें, थोड़ा पेपर को समझ लें कि क्या है और क्या नहीं है. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एथिक्स की. बट इफ यू आस्क मी, पंजाब पीसेस के अंदर, हमारे मेंस के अंदर एथिक्स ना बोल के इट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. और इट इज वेरी राइटली सेड ऑल्सो, बहुत ही सही भी कहा गया, बिकॉज द वे द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन आवर मेंस एग्जाम ऑफ पंजाब पीसीएस, वो डायरेक्टली आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की ही बात करेंगे.
दे विल आस्क यू टू मेक अ डिसीजन क्वेश्चंस के अंदर, बट क्या आपके जो आंसर्स होंगे यहाँ पर एथिक्स का क्या रोल है यहाँ पर, देयर डिसीजन मेकिंग और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी, यू शुड कीप इन माइंड द एथिकल व्यू पॉइंट। डेफिनेटली देयर विल बी एन एथिकल डिलेमा आल्सो इन दैट क्वेश्चंस जो आपको दिखेगा। सो आपका जो इंक्लिनेशन होना चाहिए वो एथिकल होना चाहिए। इन दीज it should be an ethical inclination in these problem solving and decision making manner, right? I think I am making my point. You should understand first of all the thing कि है क्या चीज, बेसिक जरूर क्लियर होने चाहिए। अभी भी कई बच्चों को इसमें डाउट आता है कि सर यहाँ पे एथिक्स का क्या रोल है। जब हमारा सिलेबस के अंदर हम देखते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग की बात करी हुई है, कहां पर है भाई द वे, GS4 के अंदर। GS4 as you all know 250 मार्क्स, राइट। 250 मार्क्स की आती है GS4, जिसके अंदर आपको डिसीजन मेकिंग एक सेक्शन है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एंड लमसम इफ यू विल सी, इसके अंदर कई सारे सेक्शंस मिलेंगे आपको GS4 के अंदर। क्या क्या मिलता है आपको, साइंस एंड टेक, राइट, देन यू हैव एनवायरमेंट, एंड द थर्ड वन इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, and there is one more which is disaster management, ठीक है। GS4 के अंदर यू विल फाइंड दीज 4 सेक्शंस। अगर आप वेटेज की बात करें GS4 के अंदर, तो हाईएस्ट वेटेज GS4 के अंदर किसको मिली हुई है, साइंस एंड टेक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, ठीक है। यू योरसेल्फ विल सी, ऑल्दो हमारे आज के लेक्चर का जो हमारी जो लेक्चर सीरीज है, इसका इंक्लिनेशन डेफिनेटली GS4 अपने डिसीजन मेकिंग के लिए ही है। दैट इज द रीजन आई एम ब्रिंगिंग दिस लेक्चर्स टू यू, बट यू शुड ऑल्सो हैव अ थॉरो एनालिसिस, राइट। एग्जाम सिर्फ डिसीजन मेकिंग से नहीं निकलने वाला है सच, सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट, बिकॉज यू नीड एन एज। वही बताऊंगा आपको कि व्हाई दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट स्टे विद मी, लेक्चर से मेरे साथ रहिए, थोड़ा थॉरो चलते हैं, समझते हैं चीजों को, अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, साइंस एंड टेक की अगर हम बात करें, इसकी वेटेज 250 के अंदर अराउंड 130 मार्क्स, तो more or less more than 50% of the section of GS4 will be devoted to science and tech, but definitely बहुत important है, definitely बहुत बड़ी वेटेज है, बट क्या सिर्फ साइंस एंड टेक करने से आपका GS4 कवर हो जाएगा, तो आंसर है ऑब्वियसली नो। यू नीड टू कवर द होल सिलेबस, ठीक है। सिलेबस कवर करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इवन एनी एग्जाम, लेट इट बी प्रीलिम्स, मेंस, इवन इंटरव्यू के लिए भी बात करें, बट उसके लिए अलग प्रिपरेशन है। बट अभी मेंस की ही बात करते हैं, प्रीलिम्स हो गया है, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेंस ओनली। तो सिलेबस कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू एक्चुअली क्लियर द एग्जाम। तो जब सिलेबस कवर करने का मतलब है यू शुड बी कवरिंग द होल टॉपिक्स, ऑल द टॉपिक शुड बी थोरोली कवर्ड, राइट, कि अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप ब्लैंक ना हो बिल्कुल भी, यू शुड बी एबल टू राइट समथिंग एटलीस्ट, ठीक है। आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं चाहिए। एग्जाम पेपर कंप्लीट करना अपने आप एक बड़ा टास्क है और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, और ढंग से कंप्लीट करना होता है अगर आपको मार्क्स निकालने। जहां एक क्वेश्चन छूटा, आप ऑलरेडी रेस से बाहर हो, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कि आप रेस से बाहर हो चुके एक क्वेश्चन के छूटने पर भी, ठीक है। तो, तो अब आते हैं उस पे, तो साइंस एंड टेक 130, राइट। एनवायरमेंट यू विल सी अराउंड 60 to 80 मार्क्स यू कैन से, ठीक है। बट हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, विच इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। एवरी ईयर यू विल सी अराउंड, यू कैन इजीली से 40 to 50 मार्क्स, 40 to 50 मार्क्स आर डेफिनेटली आपके कहां से आ रहे हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। आपका 40 to 50% मार्क्स का जो पेपर है आपका, वो यहां से आ रहा है। यू कैन से इजीली अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस, ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चंस, ठीक है, 15-15 मार्कर आपके यहाँ से आते ही आते हैं। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है सब्जेक्ट कवर करना, काफी अच्छी वेटेज के साथ आ रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पार्ट कि व्हाई यू शुड आल्सो बी प्रिपेयरिंग इट। सी, डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग,
ये आपको एक एज भी दिलवा सकता है एग्जाम के अंदर, एक्स्ट्रा पॉइंट्स यू कैन से। हाउ? बिकॉज इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत अच्छा है। You need very less preparation to score very well in this topic. ROI इसका बहुत अच्छा है, बहुत कम लेक्चर्स के बाद आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इनफैक्ट फॉर दैट ओनली आई हैव ब्रिंग दिस लेक्चर्स। सिर्फ इन लेक्चर्स को फॉलो करके भी आप आराम से इसके अंदर इजीली यू कैन स्कोर दिस, बहुत अच्छा स्कोर करके जा सकते हैं। सिर्फ इन लेक्चर्स को फॉलो कीजिए एक बार, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए, राइट। सो कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा है, ठीक है, कम इनपुट के साथ, बिकॉज वी नीड सर्टेन टॉपिक्स, ठीक है, हर चीज में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो ऐसे टॉपिक जरूर आपको देखने चाहिए। स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहिए हमेशा, स्मार्ट वर्क इज इम्पोर्टेंट। हार्ड वर्क भी इंपॉर्टेंट होता है, बट स्मार्ट वर्क इज द की टुडे, ठीक है। हार्ड वर्क तो सभी कर रहे होते हैं, बट स्मार्टली प्ले करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक पे कितना टाइम देना चाहिए, किस पे कम। हम क्या करते हैं, एक ही टॉपिक, लाइक GS4 की अगर हम बात करें, जनरली बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। साइंस एंड टेक डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन में देख लिया, बहुत ज्यादा वेटेज भी है, बट वो सिर्फ साइंस एंड टेक ही करते रहते हैं। बाकी सेक्शंस कौन करेगा, उनमें भी तो स्कोर करना है आपको। सिर्फ साइंस एंड टेक से एग्जाम नहीं निकलने वाला है, आई कैन अश्योर यू दैट। अगर आपने ये 3 क्वेश्चन आए और 3 के 3 छोड़ दिए, या एक छोड़ दिया, 2 छोड़ दिए, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द गेम। तो आपको सारे सेक्शंस अच्छे से प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। और ऐसे सेक्शंस ढूंढने भी चाहिए आपको जहाँ पे कम इनपुट में, रादर कम इनपुट, बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिल रहा है, तो क्यों ना करें, डेफिनेटली करना चाहिए आपको, ठीक है। सो दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट विद दिस, यस और नो? ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अब सीधा पेपर पे आते हैं, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर चेक करते हैं। सो दिस इज द लेटेस्ट एग्जाम, राइट, GS4 का पेपर है ये। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है, वी आर फोकसिंग सोनली ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, राइट। तो उन्हीं क्वेश्चंस पे आते हैं। आई वांट टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो यू कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं एग्जाम के अंदर, और किस टाइप से पूछते हैं वो, राइट। ओके, यस, सी हियर, सी दिस क्वेश्चन, इज इट विजिबल टू यू? यस। Critically evaluate the difficulties that come in the process of land acquisition, right? What would be your approach as a land acquisition collector, right, in Punjab to deal with them, right? तो आपसे सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, ठीक है। पहले एक प्रॉब्लम दी जाएगी आपके आगे, एक इशू क्रिएट करेंगे कि ये इशू है, सी द इशू हियर क्या है, द डिफिकल्टीज दैट कम इन द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस है, उसके अंदर जो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, पहले आपको वो बतानी होगी। तो उसके लिए आपको लैंड एक्विजिशन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, करंट सिनारियो पता होना चाहिए कि पंजाब के अंदर, राइट, पंजाब के अंदर इशू क्या चल रहा है लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड, यस और नो, राइट। ये प्रॉब्लम होगी। अप्रोच भी ऐसे ही करना है, आंसर राइटिंग में भी आपको अप्रोच भी ऐसे ही करना है। आई विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पर आपको थोड़ा क्वेश्चन को कैसे आपको अप्रोच करना है वो भी बताऊंगा आपको, राइट। सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, पंजाब पीसीएस के अंदर आपको इतना कोई खास आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सोर्स नहीं मिलेगा। तो एक लौता ये ऐसा सेक्शन है जहां मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रिलाई मत करिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए रिलाई मत करिए, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपको जो बेस है वो बहुत कम है, डेफिनेटली करने कवर वो भी है, बट आपको थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि नए क्वेश्चंस आएंगे, इतना कोई खास बेस है नहीं, राइट, बट क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, और नए नए क्वेश्चंस आएंगे, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली एक बार करने हैं, गो थ्रू करेंगे, बट आपको अलग से भी कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, और क्या वो आपको अपने एंड से भी करने हैं, इफ यू कैन वेरी गुड, बट आई एम हेयर विद यू। मैं आपके लिए इसीलिए आया हूँ कि ये वाले क्वेश्चंस आपके साथ, मेरे साथ रहिए, सेशन को अटेंड करिए, जो सीरीज को फॉलो करिए, सारी चीजें अपने आप आपको समझ में आती चली जाएंगी, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर,
राइट। कोई भी बाय द वे कोई भी डाउट है आपको, कोई इशू है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसमें कुछ भी है, आप एग्जाम ओरिएंटेड बाय द वे, कोई पर्सनल चीज नहीं, कुछ भी आपको पंजाब पीसीए से रिलेटेड है, इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन फ्रीली आस्क फ्रॉम मी। ओके, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। क्रिटिकली इवैल्यूएट द डिफिकल्टीज, हमने देख लिया डिफिकल्टीज क्या है, प्रॉब्लम बता दी। अब नेक्स्ट पार्ट आपको मोर और लेस हमेशा ऐसा ही मिलेगा, विच इज व्हाट, कि आपको एक डेजिग्नेशन प्रोवाइड करेंगे कि आप इस डेजिग्नेशन के अंदर हैं, आप एक ऑफिसर है, इस पोस्ट पे हैं, उसके बिहाफ पे आपको डिसीजन लेने होंगे। तो आपको हमेशा डिसीजन, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, आपको जो डिसीजन लेने होंगे हमेशा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ पब्लिक सर्वेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, व्हाट वुड बी योर अप्रोच एज अ लैंड एक्विजिशन कलेक्टर इन पंजाब टू डील विद देम। ईच एंड एवरी टाइम इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आपको एक एथिकल व्यू पॉइंट से, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट रखना होगा। जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं तो वहां पर आपके लिए फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी, ठीक है, आपकी इम्पार्शियलिटी, एम्पथी, कंपैशन, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रस्ट, राइट, और भी है। बट आपको ये देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी फाउंडेशनल वैल्यू की बात कर रहे हैं, आपको वही वाली यहाँ पर लगानी होगी। फॉर एग्जांपल यू नीड टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव विद दिस, यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी वाली वैल्यू का यूज होगा। ट्रस्ट बिल्ड करना होगा आपको, ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, इम्पार्शियलिटी डेफिनेटली फॉलो करनी पड़ेगी आपको। ये सुन लो, तो अगेन क्वेश्चंस को देखना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी अप्रोच होनी चाहिए। आपकी अप्रोच आपकी डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट से रहेगी, एक एथिकल व्यू पॉइंट लेना होगा, एक एथिकल डिलेमा जरूर आपके सामने आएगा, आपको अपनी वैल्यूज को दिखाना होगा, वहां पर एग्जांपल्स भी शो करने होंगे, राइट। और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमेशा जब भी ऐसी आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, क्वेश्चंस आए, आपकी जो अप्रोच है, अप्रोच आपकी दो वे में रहेगी। वन विल बी शॉर्ट टर्म, let me come, your approach, हमेशा आपके जो क्वेश्चंस है उनका जो फॉर्मेट है वो 3 स्टेप्स में रहेगा। फर्स्ट विल बी इंट्रो, सॉरी, इंट्रो में के अंदर आप क्या बताओगे कि जो प्रॉब्लम है, इशू है, यू विल गिव एन इंट्रो फॉर दैट, कि इशू क्या है यहाँ पर आपके सामने, उसके थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेन करोगे, उसको उसके बारे में थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन दोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लैंड एक्विजिशन की बात हो रही थी, यू विल बी एक्सप्लेनिंग लैंड एक्विजिशन एक्ट हियर, राइट। उसके जैसे जो इश्यूज फेस किए जाते हैं आप उसको एक्सप्लेन करोगे, राइट। बहुत ही जनरल टॉपिक है, स्टेट आपके सिलेबस का पार्ट है बाय द वे, स्पेस अवे, ठीक है, तो वो बताओगे, इंट्रोड्यूस कर दिया। देन आपकी अप्रोच होनी चाहिए दो वे में, वन शुड बी शॉर्ट टर्म रेमेडी, या फिर आप इसको इमीडिएट रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट रिस्पॉन्स, whatever you feel comfortable, ठीक है, किसी भी जैसे क्वेश्चन की डिमांड हो। और देन शुड बी लॉन्ग टर्म अप्रोच, लॉन्ग टर्म अप्रोच के अंदर आप क्या बताओगे कि जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, इशू आगे कभी फ्यूचर में आए ही ना, ठीक है, एक सस्टेनेबल रिस्पॉन्स होगा आपका, लॉन्ग टर्म अप्रोच, ठीक है। सस्टेनेबल इन सेंस की भी, मेरा सस्टेनेबल बोलने का मतलब यह है कि फ्यूचर में ना आए कभी प्रॉब्लम, ठीक है, बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। बट शॉर्ट टर्म इमीडिएटली एक बारी के लिए इस इशू को थोड़ा सेटल डाउन करा जाए, ठीक है, शॉर्ट टर्म रेमेडीज बतानी होंगी आपको,
यहाँ पर भी बताओगे, लाइक इस एग्जांपल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बतानी है, पहले शॉर्ट टर्म बतानी है, फिर लॉन्ग टर्म के अंदर आप क्या बताओगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, द गवर्नमेंट शुड टेक दिस काइंड ऑफ एक्शन। यस और नो, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर अपने पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, तो दिस टाइप से बता सकते हो आप, ठीक है, कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर जो इश्यूज हैं उसी को सॉल्व करने की बात करोगे आप लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। और भी तरीके हैं, ठीक है, और भी आंसर्स हैं, वी विल बी डीलिंग इन द फ्यूचर लेक्चर्स, डोंट वरी। क्वेश्चंस को देखेंगे, अच्छे से टैकल भी करेंगे उनको कि कैसे करना होता है, एक आपको उसका फ्लो चार्ट ही बताऊंगा वहां पर, ठीक है। आई विल बी टेलिंग यू द अप्रोच टू दिस क्वेश्चंस। अप्रोच होनी चाहिए, फ्रेमवर्क्स होनी चाहिए आपके दिमाग में, सिर्फ फ्रेमवर्क्स बना के रखा करो, बहुत हेल्प करेगा। फ्रेमवर्क्स बनाओगे तो जितना होता क्या है कि हम पढ़ते बहुत हैं, वी स्टडी अलॉट, मेंस के लिए हम ये भी टॉपिक पढ़ लेंगे, वो वाला टॉपिक भी पढ़ लेंगे, लेकिन इशू आता है एक इंटरलिंकेजेस के ऊपर, हम इंटरलिंक नहीं कर रहे होते। We are not able to give examples, good examples। अगर एग्जांपल्स दे रहे होते हैं तो गलत जगह पे दे रहे होते हैं, ठीक है, रॉन्ग पोजीशनिंग होती है आंसर्स की हमारी। ये सब चीजें आप कैसे रिजॉल्व करोगे, फ्रेमवर्क्स की हेल्प से। अगर दिमाग में फ्रेमवर्क सेटअप कर रखे हैं, और डेफिनेटली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विच इज वेरी क्रूशियल, लिख के देखोगे तभी होता है, बिना लिखे कुछ नहीं होता, ठीक है। निष्काम कर्मा, गीता में भी लिखा है, राइट, बिना किसी भाव से लिखना है आपको, प्रैक्टिस करते चले जाना है। फ्रेमवर्क तो बना लिए, उसकी प्रैक्टिस भी करोगे, बस ये की होती है आपकी, करके देखना, ज्यादा पढ़ना भी नहीं होता, पढ़ना ठीक है, टू सर्टेन एक्सटेंट यू नीड टू स्टडी, बट उसके बाद जितनी प्रैक्टिस करोगे दैट विल हेल्प यू आउट, राइट, वो अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगी, वहीं आपको आगे लेके जाएगी, वहीं आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगी। तो फ्रेमवर्क्स बनाने हैं सो दैट आप इंटरलिंकेजेस कर पाओ, टॉपिक पढ़ लिए, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है आपकी, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पर आप लैंग्वेज आपकी GS2 वाली चल रही है या GS1 वाली चल रही है, तो बात नहीं बनती, ठीक है। इसी वजह से देखा गया हमने कि इन जनरल भी, इन जनरल बच्चों के GS4 के अंदर, स्पेशली इस प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पार्ट के अंदर जो 3 क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत बड़ा वेरिएशन दिखेगा आपको, ओवरऑल मार्क्स के अंदर बहुत बड़ा वेरिएशन दिख जाता है, कहीं बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, कहीं बहुत बेकार स्कोर कर रहे होते हैं, यही रीजन होता है उनका कि वो इंटरलिंकेजेस नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। लैंग्वेज इशू होता है उनके, लैंग्वेज इन द सेंस कि द एग्जाम GS4 रिक्वायर्स द लैंग्वेज ऑफ द GS4 ओनली, ठीक है, GS2 के अंदर लैंग्वेज GS2 वाली होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ऐसे के अंदर ऐसे वाली लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना है आपको, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखना है, एग्जाम्पल्स कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पर प्लेस करना है ये भी पता होना चाहिए आपको, कई बच्चे एग्जाम्पल से याद करते हैं लेकिन कब कहाँ यूज करना है वो नहीं समझ आता उनको, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग, हम बात कर रहे थे यहाँ पर आपकी अप्रोच की, आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट, यू आर वेरी, यू शुड बी वेरी थॉरो विद इट नाउ, बट हाँ जब करेंगे एक्चुअली में तब आपको और क्लैरिटी आएगी इस चीज के ऊपर, ठीक है। सो लेट्स गो बैक। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इको टूरिज्म, ठीक है, व्हाट इज इको टूरिज्म, व्हाट वुड बी योर प्लान अगेन एज डायरेक्टर टूरिज्म टू डेवलप पंजाब एज इको टूरिज्म हब, राइट। अब यहाँ पर इशू क्या है, क्या इको टूरिज्म इशू है एज सच, सी इशू यहाँ पर होगा कि पंजाब को इको टूरिज्म का हब बनाना है, तो यहाँ पर इको टूरिज्म एज सच अभी इतना फ्लरिश नहीं कर रहा होगा पंजाब में, तभी आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर यही आपके सामने इशू बनेगा एक, ऐसा नो अगेन, इशू आपके सामने आ गया, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे हैव प्रोवाइड पुट यू इन अ डेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर टूरिज्म अगेन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, यू नीड टू थिंक, एडमिनिस्ट्रेटर के व्यू पॉइंट से ही सोचना है आपको, उसी व्यू पॉइंट से आपको डिसीजन भी लेने होंगे, तो ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द ओवर यूज, सी आपको एक चीज जरूर दिख रही होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा लंबे लेंथी क्वेश्चंस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, इजीली आपको लिखना है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है, चीजों को समझा है, अलाइन वे में करा है, डेली बैठ के प्रैक्टिस करी है, दिल से प्रैक्टिस करी है, आई मीन यू आर कंसिस्टेंट, ठीक है, डिसिप्लिन वे में,
आप डिसिप्लिन थे और कंसिस्टेंटली आपने चीजों को प्रैक्टिस करी है, आप आराम से इजीली स्कोर कर सकते हैं। यू जस्ट डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आप सोचते ज्यादा हो, करते बच्चे कम है, कैसे करेंगे कैसे नहीं, आपके सामने है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं है। ऑल्दो इस साल के एग्जाम के अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं कि मे बी थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस आपके सामने दिखें, बट वो सबके लिए लेंथी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, सबके लिए आप टैकल कर जाओगे उसको। ठीक है, प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हो आप, यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर दैट रीजन ओनली। ठीक है, ओके। द ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग हैज इंक्रीज द वाटर, एयर एंड सॉइल पोल्यूशन लेवल्स which has affected the human health by causing some serious ailments like कैंसर। इशू आ गया सामने आपके, राइट। ओवर यूज किसका, पेस्टिसाइड्स का फार्मिंग के अंदर, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स दिखा रहे हैं आपको, हेल्थ के ऊपर कितने हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। इसके ऊपर आपका इंट्रो प्रिपेयर हो जाएगा, इजी है, यस और नो। आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू दैट। इंट्रोडक्शन, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर दिया जाए, कुछ डाटा भी दिखाओगे आप वहां पर, राइट, कुछ डाटा का यूज करोगे, यस और नो। स्टैट्स एंड फिगर्स डेफिनेटली वो यूज करना चाहिए यहाँ पर आपको। ठीक, उसके बाद देन suggest remedial steps as a sub-divisional magistrate SDM to tackle this prevailing menace in your area। वही फॉर्मेट है, प्रॉब्लम बताइए आपको, आपको प्रॉब्लम बतानी है। ठीक है, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, इशू को एक्सप्लेन करना है थोड़ा अच्छे से, इन अ वेरी गुड मैनर, प्रिसाइज मैनर, एंड देन उसके बाद एज एन एसडीएम आप क्या बताओगे, यू विल बी गिविंग टू टाइप्स ऑफ मेजर, शॉर्ट टर्म रेमेडी एंड लॉन्ग टर्म एज वेल, यस और नो, राइट। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट वेरी क्लियर टू यू, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। शॉर्ट टर्म रेमेडीज बताओगे, देन लॉन्ग टर्म बताओगे कि भैया पंजाब के अंदर से ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, यस। ठीक है, इसी वे में आपको आंसर करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक, ओके। सो दीज थ्री क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द रीसेंट एग्जाम, इससे पहले जो एग्जाम हुए अपने, वहां पर चेक करते हैं। ओके, ये 2015 का पेपर है। जस्ट अ सेकेंड, सी, ओके, wait, yes, see here, विजिबल है आपको, यस। ठीक है, तो आपके सामने क्या है यहाँ पर, यू आर डिटर्मिन्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। एक सेकेंड, नो, ठीक है, you are determined to change the state of affairs of government primary schools in your city, right? Poor infrastructure, low attendance of teachers and students, right, and corruption are some of the major issues. What will be your short term and long term? See, अब इन्होंने अपने आप ही पूछ लिया आपसे, what will be the short term and long term plans to improve the condition of these schools as the SDM of city? Straight forward question, मैं कहता हूँ मिस आउट करना ही नहीं चाहिए, 100 वर्ड्स में आंसर करना है आपको, राइट। कि प्राइमरी स्कूल्स के अंदर आपके क्या इश्यूज है, इश्यूज ही बता रहे हैं आप, थोड़ा सा अच्छा वेल मैनर में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एसडीएम आप कैसे टैकल करोगे, क्या लॉन्ग शॉर्ट टर्म रेमेडी रहेगा, क्या आपका लॉन्ग टर्म रेमेडी रहेगी, यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड वही चीज नहीं है। ठीक है, डोंट वरी, क्या क्या कैसे लिखना है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, वो भी आगे आने वाले लेक्चर्स में आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी of information about imminent riots in sensitive areas, why have the district administrative generally not been successful in foiling the intentions of rioters? Comment on the shortcomings of administrative actions। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि भैया सेंसिटिव एरियाज में राइट्स क्यों होते हैं, पता भी होता है कि ऐसा हो सकता है, उसके बाद भी हो जाते हैं, तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या इश्यूज आप फेस करोगे, आप पहले वो बताओगे कि भैया ऐसा क्यों हो पा रहा है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ही आपको आंसर करना है। और ऐसा क्यों ना हो, व्हाट शुड बी द रेमेडी ऑफ इट, कि फ्यूचर में कभी ऐसे राइट्स ना हो, क्या शॉर्टकमिंग है, शॉर्टकमिंग भी बतानी है, थोड़ा सा आपको सजेशंस भी देने हैं यहाँ पर, यस और नो। ओके, देन सी अगेन,
एक और क्वेश्चन, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्टेड बाय द सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज फेयरली लो एज कंपेयर टू द पोटेंशियल, राइट, ओनली 1/3 प्रॉपर्टीज आर असेस्ड, इशू आ रहा है आपके सामने, फर्दर ओनली 30% ऑफ द असेसमेंट इज फाउंड टू बी assessee is found to be paying tax, right? However, there is low political will to impose new taxes and collect taxes strictly. In your opinion, how can such situations be handled and how can you as a municipal commissioner generate the much needed resources? Yes or no? प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पे इशू है आपका कि भैया क्यों नहीं कलेक्ट कर पा रहे, ऊपर से कम कलेक्ट हो रहा है और ज्यादा हो सकता है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसमें, लेकिन स्टिल, और गवर्नमेंट है उसकी इंटेंशन भी ज्यादा बढ़ाने की नहीं दिख रही, वोट बैंक होता है। तो एज अ म्यूनिसिपल कमिश्नर, राइट, एज अ म्यूनिसिपल कमिश्नर आप कैसे कर सकते हैं, कैसे इस इशू को टैकल करेंगे? ये सब लोग, क्या क्या पावर है आपके हाथ में, वो चीजों को कैसे टैकल करें? सी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पंजाब पीसीएस मेंस के अंदर जो अपना डिसीजन मेकिंग है वो एथिक्स से थोड़ा सा अलग है, जो आपके यूपीएससी के अंदर एथिक्स आता है या फिर किसी और स्टेट सर्विस के अंदर एथिक्स आता है, उनसे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहीं ना कहीं आप केस सॉल्विंग से रिजॉल्व कर सकते हैं इसको, केस स्टडीज है बेसिकली, क्वेश्चंस ना आप पूछ के केस स्टडीज ही पूछी जा रही होती है आपसे, वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केस स्टडीज है, वो बड़ी बड़ी लेंदी केस स्टडीज नहीं है। यस और नो? ओके, सी एक और क्वेश्चन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन इस बार भी आए, मतलब 2015 में पूछे हुए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन की एवरेज हर साल रहती है। यस, सी इन बिग सिटीज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लैंड हाउसिंग पैटर्न्स आर चेंजिंग रैपिडली, more and more multi-story buildings are coming up and independent houses are being converted into flats, thereby aggravating the problem of sanitation, see, drinking water supply, traffic jams, parking and so on. Congestion, congestion जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर क्वेश्चन है कि इशू क्या है यहाँ पर, कंजेशन। एंड इन योर ओपिनियन हाउ कैन दीज प्रॉब्लम्स टैकल्ड बाय द सिटी मैनेजर्स? एज अ सिटी मैनेजर आपको इसका आंसर करना है, डिस्कस विद एग्जांपल, सी गुड एग्जांपल्स विल ऑलवेज स्कोर गुड, ठीक है, वो आपको ज्यादा मार्क्स में दिलवाएंगे। अगर यहाँ पे लाइक 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है, अगर 15 मार्कर, ठीक है, आप इजीली यहाँ पर 9 से 10 नंबर निकाल के ले जा सकते हैं अगर आपने अच्छे से इसको आंसर कर दिया बहुत इजीली, विच इज वेरी गुड स्कोर, राइट? ओके, तो these 3 questions were asked in 2015, then आपके सामने ही है the number of questions, see 2018, यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट एंड इंपॉर्टेंस, ट्रस्ट एंड importance in the modern times and it requires massive structural reforms and alternative arrangements, right? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बट ही शुड बी, यहाँ मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप देखो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज इन इंडिया हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट एंड इंपॉर्टेंस, इशू आपके सामने यहाँ भी है, इशू डेफिनेटली वो प्रोवाइड करेंगे, आपको उसका सोल्यूशन ही देना होगा, बट एक एथिकल व्यू पॉइंट से, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट से, एज एन ऑफिसर, एज अ पब्लिक सर्वेंट आपको इसका आंसर करना होगा। यस और नो? अलग वे में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक, देन और क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं यहाँ पर? ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है, एक ही क्वेश्चन आया 2018 के अंदर, राइट, बट इस बार काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस सेक्शन में से भी, 3 क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं कम से कम भी, राइट? अब 2020 ये हमने देख लिया पहले, ठीक है, 2020 वाला पेपर हमने देख लिया, ओके, राइट, ऑल राइट, सो द होल idea of this session was no fear, ठीक है, अपने, you should not be fearful about this section, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इनफैक्ट यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट इट कि यार एक सेक्शन ऐसा दिया है जहां पर कम टाइम लेके हम अच्छे खासे मार्क्स निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ तो दिया पंजाब पीसीएस ने हमारे लिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको वो चीज ध्यान रखनी है। सो विद दिस, ठीक है, विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन टुडे, राइट,
and I am very thankful to you for attending this session. If you have any doubt, any query, any issue, आप comment section में मुझसे freely पूछ सकते हैं. You don't need to worry about it, right? And we will meet in the next section. Till then, take care and bye bye. Thank you.